Hello, enthusiastic learner of class 12. Welcome again to the new video of class 12, chapter 4, poverty. Today, the topic which we are going to do, that is poverty alleviation programs in India. Actually, already this part, poverty alleviation programs which has been adopted in our country, that we have discussed in the previous video, that means part 8. Today, just we will do a critical assessment of the poverty alleviation programs which has been implemented in our country. That means we will just criticize. What means clearly we can say that what are the demerits, how whether these programs are successfully implemented or not. That the result we will find it out today in this video, and this is the last video of chapter 4 poverty. I hope you people are watching this chapters all the videos which has been uploaded in the same channel. Before watching this part 9, please watch that all the part 8, then come to this part 9. Otherwise, you will never understand anything. Let's get started. First is what? The topics like introductions, meaning of poverty, who are poor, poor in urban and rural area, common characteristics of poor. That means all the videos we have already completed, all the topics we have completed. Today just we are going to do that what? Critical evaluation of poverty alleviation programs, in short, which is known as PAP. It is known as poverty alleviation programs. In short, we used to say what? PAP. So let's get started. Critical evaluation of poverty alleviation programs is that the policy to or the poverty alleviation has evolved in a progressive manner, but hunger, malnutrition, illiteracy, and lack of basic amenities continue to be a common feature in many parts of the India. It means that this poverty alleviation programs has been implemented progressive manner. In the progressive manner it has been implemented, but still the hunger, malnutrition, illiteracy, lack of basic amenities, these all are exist still in our country, many parts of our countries. You can see that in 1947 we have got implemented from right from the first chapter. We are studying that how the Jawaharlal Nehru made in the first 5-year plan, many things has been made to develop, and poverty alleviation programs has been implemented, but till today poverty ratio of India is what? 26% people are below poverty line. It means that the poverty alleviation programs which has been implemented, it has not been implemented in successful manner. Are you getting? So let's see what are the what problems we faced in the implementations, right? The poverty alleviation programs have been found unsatisfactory because of the following reasons. What are the reasons? Lack of resources as compared to the magnitude of poverty. जो poverty ratio का जो रेशियो है, जैसे वो इंक्रीज हो रहा था उस हिसाब से द अमाउंट और रिसोर्सेस एलोकेटेड फॉर दिस प्रोग्राम इज नॉट सफिशिएंट. हमारे भारत में पॉवर्टी जिस रेशियो में है, उस रेशियो में जो प्रोग्राम्स लगाए गए या अमाउंट या रिसोर्सेस को एलोकेट किया गया वो सफिशिएंट नहीं था. जो पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेस. इसीलिए हमारा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स सही काम नहीं किया या पॉवर्टी हमारा कंप्लीट एराडिकेट नहीं हुआ. दूसरा पॉइंट क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स क्या है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स. मतलब आप समझना, जैसे पहले हम देखे हैं हमारे भारत में जो जमीन है, जो लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग नहीं हुआ था. जमींदार के पास ज्यादा जमीन था, जो ज्यादा एक्चुअल टिलर है, जो जमीन में सही मायने में काम करता है, उसके पास जमीन नहीं था. The benefit from poverty alleviation program have been appropriated by the non-poor. जो non-poor कैटेगरी थे उन्हीं को ही ज्यादा फैसिलिटीज मिला या इसकी पूरी बेनिफिट उनको मिला क्योंकि उनके पास ज्यादा जमीन था. Improper implementations, ये भी थर्ड पॉइंट है. These programs depend mainly on government and bank officials. Their implementations, ये जो प्रोग्राम है ये कौन इंप्लीमेंट करेगा? गवर्नमेंट और जो बैंक ऑफिशियल है जो लोन देते हैं.
However, corruption, lack of training, pressure from local leaders, non-participation of local level institutions resulted in proper implementation of the programs. जो करप्शन आप देखते हो और लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बहुत नौटंकी करते हैं हर चीज में, उनने किया और ये सब चीजें सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। आप कितना भी पैसा दे दो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हम कितना भी पैसा किसी को दे दें उसको हम एनवायरनमेंट कभी नहीं दे सकते या एनवायरनमेंट परचेस नहीं कर सकते। तो स्कूल सही मायने में बनाया जाता तो पॉवर्टी एलिवेशन हो सकती थी, रोड्स बनाया जाता, पावर सप्लाई की जाती, पावर मतलब करंट, टेलीकॉम, आईटी सर्विस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सब सही से नहीं हुआ। हम इसको स्ट्रिकन एरिया बोलते हैं, पॉवर्टी स्ट्राइकन एरिया, इसमें अच्छे से काम नहीं हो पाए। उसके बाद लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल्स, दैट मीन्स जितने भी पुअर पीपल्स थे इन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया या कोऑपरेट नहीं किया। हाई ग्रोथ रेट अलोन इन is insufficient to reduce poverty. That means हाई ग्रोथ रेट जो हमारा हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है, ये सही मायने में पॉवर्टी कभी भी क्या एराडिकेट नहीं कर सकता। जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हर चीज में रैपिड व्हाट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन वो एक मैटर आता है, यहाँ भी उसके वो बढ़ते जाएगा तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट देयर इज अ नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। दैट मींस जो पुअर खुद है वो खुद चाहे कि हम गरीबी से बाहर आए। अभी मान के चलो किसी एक भिखारी भीख मांग रहा है, वो भिखारी को हम लेके आके अच्छे से एक शेल्टर होम में रखेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, अच्छे से जॉब देंगे, वो बोलेगा नहीं भाई भीख मांगना तो आसान है, किससे मांगो बैठ जाओ, कौन इतना मेहनत कर रहा है भाई। वो खुद पुअर लेवल से ऊपर आना नहीं चाहेगा तो हम कैसे करेंगे। ये सबसे बेसिक चीज है कि वो खुद चाहे कि ऊपर आए, दैट मीन्स पॉवर्टी लेवल से ऊपर आए। ये जो बेसिक 5 रीजन थे जिसके वजह से हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या हुआ, सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था या सक्सेसफुली काम नहीं किया था। पॉवर्टी कैन बी इफेक्टिवली इरेडिकेटेड ओनली व्हेन द पुअर स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ बाय द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस, जो हमने अभी डिस्कस किया। दिस इज पॉसिबल थ्रू a process of social mobilizations encouraging poor people to participate and get them empowered. This will also help in creating employment opportunity which may lead to increase in level of income, skill development, health and literacy. जो चीजें मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया वो आपके इस कोट में है। इसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन। ये चैप्टर का कंक्लूड करते हैं, देखते हैं क्या है। सिंस इंडिपेंडेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल आवर पॉलिसीज हैड लेड एम्फेसिस on rapid and balanced economic development with equality and social justice. Since from independence हमारा जितने भी पॉलिसीज हमने बनाया वो क्या था, इकोनॉमिक बैलेंस करना, डेवलपमेंट करना, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस सभी लोगों के पास रहना। इसीलिए तो हमने जो डिस्कस किया था हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए तो अडॉप्ट की गई थी। Poverty alleviation has always been accepted as one of the India's main challenge by the policy makers and there have been certain positive results. अब ये समझना कि हमारा जो राइट फ्रॉम द 1947 हमारा जितने भी प्लान्स बने, प्लानिंग कमीशन बनाया, अभी नीति आयोग बनाता है, हर चीज में गरीबी को कैसे हटाया जाए, हर प्लान में कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाई ही जाती है। इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं। क्या है, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री हैज गॉन डाउन एंड सम स्टेट हैज लेस प्रोपोर्शन ऑफ पुअर देन द नेशनल एवरेज। अभी जैसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, हमारा जो पॉवर्टी है 137 करोड़ से वो 37 करोड़ से 26 करोड़ में पहुंचा था। मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है मगर फुल्ली क्या काम नहीं किया है। देयर आर इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के जो पर कैपिटा इनकम है हमारा वो इंक्रीज हुआ है। हम अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग में आए हैं और आगे हम डेवलप्ड के एरिया में जा भी रहे। आप देखोगे हमारा कंट्री अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, यूके को पछाड़ के ये बनने जा रहा है। एनीवे कोरोना आ गया मगर हमारा कंट्री डेफिनेटली क्या होता, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा था वर्ल्ड में। ये कैसे हुआ, यही पॉवर्टी को हमने एलिवेशन किया है, पॉवर्टी को इरेडिकेट किया है, इसीलिए तो हम डेवलप हो रहे हैं। पर कैपिटा कहीं ना कहीं तो डेवलप हुआ है, राइट। एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों की है कंट्री में वो डेवलप हुई है। देयर हैज बीन सम प्रोग्रेस टुवर्ड द मीटिंग ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर पीपल। बेसिक नीड्स जो पुअर पीपल्स के ये भी डेवलप हुआ है, राइट। हाउएवर
when we compare the progress of our country with progress made by many other countries, our performance has not been impressive. दूसरे कंट्री को हम देखेंगे तो हमारा कंट्री का जो प्रोग्रेस है ये इंप्रेसिव नहीं है, मगर काम किया है। मतलब बोलते हैं 100 से कुछ परसेंट काम किया है, 100 से 100 काम नहीं किया है। हम किसी रिलेटिवली किसी दूसरे कंट्री के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम देखें तो हमारा कंट्री का पॉवर्टी एलिवेशन इतना इंप्रेसिव नहीं है। Moreover, the benefit of growth and development have not reached all section of populations. As a result, even after allocating and spending vast resources for eradication of poverty, we are still far from reaching the goal. Anyway, हमको हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टिल एग्जिस्ट रखना है, इसको और भी पॉलिसीज लाना है, पॉलिसीज ला के पॉवर्टी को एराडिकेट करना है। With this, we have successfully completed our chapter. Thank you very much for watching. Stay healthy, stay blessed, and stay tuned.